Today is the 47 sessions of Golden Charcha. It is a good initiative by our chairman Vishnu Kumar Tulsian ji. Uh, I not say any more. Request to Khemka ji to today's special address. Request to Khemka ji. Khemka ji, please. Thank you, Chimbuji. Hello, everyone, and good evening. So, the session today is about cloud technology, and it's a session. It's a topic that's quite close to me also, having been connected with IT for about 15 years. So, with the change of the era, and in the last, let's say, about a decade or so, more so in the last 5 years, businesses and more so in our industry also, work is gradually shifting to cloud-based or let's say online, as we may call it. So, right from let's say data storage, from being offline to pen drive based to Google Drive, and now it's Drive was the first form of being cloud based, and now we have proper cloud based storage systems. Then from using offline apps like Tally to switching to online apps, including online cloud based accounting softwares to all kinds of cloud based account applications, even development for that matter, whether it's development of applications, whether it's development of let's say any content, that is also being done online and cloud based. Then is the use of the modern generative AI content, that again is cloud based. So today the technology, I'm sure Rakesh ji will have an entire detailed extensive discussions about this, but today the entire world is moving towards a more cloud-based content. Obviously, that also comes with its own challenges and benefits, right? From let's say being scalable, easily available, accessibility, but again, the challenges of data privacy and security. So, cloud technology for all, and especially for us as chartered accountants, is a great opportunity. Definitely here to stay, and definitely something that I'm sure most of us have started using, and definitely will be using in the coming decade. And the pros and cons and the benefits and challenges is what the entire discussion in the session will be about. So I'm sure with the expert knowledge of Rakesh ji, we will have a great session moving forward. So over to you, Rakesh ji. Thank you, Chimpu bhaiya. So good evening all. Just a Thank you minute, so राकेश much. जी. Just a minute, राकेश जी. 2 मिनट और लूंगा आपका, राकेश जी. हाँ जी सर, हाँ जी. Thank you, Khemka ji, for your address. And today's speaker is CA Rakesh Kumar Singh. Uh, Topic is cloud technology. And just speak some words about Rakesh Singh ji. He is an experienced chartered accountant with over 15 years of professional expertise in accounting, bookkeeping, financial advisory, and small business taxation. He specializes in financial accounting, budgeting, loan advisory, financial planning, and in-depth financial analysis. Well versed in cloud-based accounting solution, he has helped numerous business streamline operation, improve compliance, and achieve sustainable growth through practical approach, customized financial strategic, known for his advisory approach. C. Rakesh Singh works closely with enterprise to simplify complex financial matters and supports informed decision making. With a strong focus on professional integrity and result-oriented solution, he is committed to building long-term client relationship and enable business to realize their full financial potential. This is a brief history of राकेश सिंह जी. वैसे तो राकेश जी हमारे प्यारे हैं, हमारे काफी क्लोज है, हम सबके प्यारे हैं इनफैक्ट. तो ये क्लाउड बेस के लिए जस्ट एक लाइन बोलना चाहूंगा कि समहाउ मेरे को पटना जाना पड़ा था. तो मेरा सारा सिस्टम सर्वर में था. तो मेरे सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर ने बोला कि भाई क्लाउड बेस ले लीजिए, तो पेइंग सम एक्स्ट्रा अमाउंट. तो मुझे उस समय लगा वेस्टेज ऑफ मनी. बट जब मैं 5 तारीख को पटना गया कोई इमरजेंसी रीजन से, और वहां पे जब मैं इस फैसिलिटी को यूज किया कि मेरा पूरा डाटा क्लाउड में था, मेरे को वहाँ रिटर्न लगाने में कोई समस्या नहीं हुई. टोटली फ्री में मैं मतलब विदाउट हेजिटेशन और बिना एक्स्ट्रा टेंशन के मैंने रिटर्न लगाया. तो ये हमारा क्लाउड बेस का सबसे पहला बेनिफिट मेरे लाइफ में था. तो क्लाउड बेस इज द टू इम्पोर्टेंट फ्रॉम टूडेज डाइवर्सिफाइड लाइफ. तो आई अप्रोच राकेश जी टू स्टार्ट टूडे सेशन. Yeah. So thank you Sanjay ji, thank you Chimpu bhaiya for such a wonderful introduction.
and thank you EIRC and Chairman for keeping such a wonderful series. So I have a request to Chimpuji. See, there are only 7 attendees. Okay. So can we make it more interactive? Can you make all of them as a panelist so that we can have a live session interaction, and so that I can ensure that when the session is finished, at least they feel that they have utilized their time. Okay, Rakesh, I tried to make all the co-hosts. So, everyone, if you can just give me a quick yes in the chat, so that we can make this session more interactive and live, practical oriented, rather than just session. ये ऐसी So, की कोई सुन रहे हैं? हेलो, हेलो, ये ऐसी से कोई सुन रहे हैं क्या? शांतनु दा, हेलो, राकेश जी, यहाँ से पॉसिबल नहीं हो रहा है, वो शायद आईआरसी के सॉफ्टवेयर से ही करना पड़ेगा। okay, okay. Should I try, चिंपू जी? मैं एक बार ट्राई करूँ क्या? हाँ, आप करो। I can also try if you want. So everyone, I have sent a request to everyone to join as a panelist. If you can please change your yes, please join as a panelist rather than as an attendee, so that we can have a fruitful session. Because there's such a less gathering, so we can utilize this to to the best of whatever time we have. राकेश जी, some have accepted, some have declined. No आप problem. सेशन स्टार्ट No कर लीजिए. problem. No problem. So before I share my screen, just wanted to understand, आप लोग में से कौन कौन है जो अभी तक क्लाउड टेक्नोलॉजी या क्लाउड टेक्नोलॉजी के बारे में जानता है, या फिर कोई भी कुछ भी यूज कर रहा है? डू वी हैव एनी? यू कैन जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ. आई हैव गिवन रिक्वेस्ट टू एवरीवन, सो अलाउ टू टॉक. So you can just unmute yourself and you can say. Anyone? राकेश जी, मैंने किया है इसको क्लाउड रिसेंट में, बताया ना कि मतलब मैं से काफी मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड भी मेरे को लगा ये। I think people are finding it difficult. Any which ways, I'll share my screen. I'll share my screen. Otherwise, we could have some real life, just an example. But then I'll share my screen. Please let me know when you see my screen. Yes, Rakesh ji, it is visible. Visible only, no? Yeah. Okay. So, Chimpuji, you are there, so please respond me whenever it is required, because I could see only my presentation. So Yes, if any hand is raised or if any question is raised, just do let me know, yes, so yes, that yes. we can utilize this time. सो क्लाउड रेडी सीए फॉर्म, इसके बारे में शायद अब काफी चर्चा हो चुकी है कि क्लाउड क्या है, जीपीटीज क्या है,
नाउ एट इंस्टीट्यूट लेवल आई थिंक जिस लेवल पे हमारा इंस्टीट्यूट काम कर रहा है या फिर जिस लेवल पे हम लोग रेडी हो रहे हैं फॉर नेक्स्ट नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए, नेक्स्ट जनरेशनल प्रैक्टिस के लिए, अब तो AICA लेवल 1 लेवल 2 भी हो चुका है। तो आई थिंक by now I am assuming that we are aware of what is cloud technology. At least we know what is cloud. But then, for the sake of just explanation, let me again tell you कि anything when we save it on some drive which is accessible from anywhere, anytime, that we call as cloud technology, right? Now the advantage, disadvantage, precaution, whatever is required from for the cloud technology, that we will discuss. But that is not the point today. What we want to discuss is whether our CA firm is ready for the next generational practice or not, whether our CA firm is ready to adopt this cloud technology or not. See, मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ क्योंकि किसी भी चीज को जानना एक अलग बात हो गया, और उसको इम्प्लीमेंट करना, प्रैक्टिकली उसको फॉलो करना और उसमें जो चैलेंजेस आ रहे हैं उसको एड्रेस करना, वो एक अलग लेवल पे अलग डिस्कशन हो गया है। सो why cloud tech transformation matters now? When we talk about now, this now we are talking since last uh, couple of years, right? I had taken couple of sessions on cloud technology, why cloud, but then why it matters the most now. So probably at institute level, I don't think so. We will find any CA who is not using GPTs, right? We are using generative AI for our drafting purpose, for our emailing purpose, for a lot of purposes. We are using our like GPTs. Institute has also developed their RAG-based GPTs, जिसमें सारे एक्ट्स हैं, सारे एक्ट्स से रिलेटेड नॉलेज उसमें फीड किया हुआ है, और आपको जिस भी फील्ड का जो भी नॉलेज का रिक्वायरमेंट है आप वहां से ले सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। तो अब ऐसा क्या हो गया कि अगर आप क्लाउड में नहीं हैं तो आप बहुत पीछे हैं, या फिर प्रोबेबली अगर हार्ड ट्रूथ कुड बी कि अगर आप बहुत पीछे हैं तो शायद आप एकदम पीछे ही छूट जाएं। हम लोग पहले बात करते थे कि क्लाउड में जाने का एक एडवांटेज है, ट्रेडिशनल प्रैक्टिस में क्या है, क्लाउड में जाने का क्या एडवांटेज है कि आप कहीं से भी फाइल शेयर कर सकते हैं, जैसा चिंपू जी ने बताया। वर्कफ्लो ऑटोमेटेड हो सकता है, और ऑटोमेटेड वर्कफ्लो मतलब आपका जो भी अप्रूवल्स हैं आप ऑन द गो अप्रूव कर सकते हैं, चीजों को ऑन द गो देख सकते हैं। ये सब भी हम लोगों ने काफी बार चर्चा कर चुके हैं। अब का समय ऐसा हो गया है कि अब AI एजेंट्स आ गए हैं, एजेंटिक AI आ गया है, और AI एजेंट और एजेंटिक AI जो कि ऑटोनोमस सिस्टम है, जो ऑटो आपके चीजों को कर देगा, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक कर सकता है, आपके लिए अकाउंटिंग कर सकता है, आपके लिए कैलेंडर ब्लॉक कर सकता है, आपका मीटिंग रिकॉर्ड कर सकता है, आपके मीटिंग का MOM बना सकता है। अब इन सभी टूल्स को अगर अपने को यूज करना है, क्यों यूज करना है? क्योंकि ये हमारा काफी सारा काम कर देता है, ये काफी एफिशिएंट है। दिस वी कॉल्ड एज नाउ डिजिटल डिजिटल वर्कफोर्स। तो वी आर नेमिंग इट एज अ डिजिटल वर्कफोर्स। लेकिन डिजिटल वर्कफोर्स को तो एनेबल करने के लिए प्लेटफॉर्म चाहिए। पहले क्लाउड की बात हो रही थी कि क्लाउड में जाना है क्योंकि हमें डेटा कहीं से भी एक्सेस करना है, क्लाउड में जाना है क्योंकि हम कहीं से भी अपने क्लाइंट को सर्विस कर सके, मॉनिटर कर सके। लेकिन अब ये और भी ज्यादा जरूरी हो गया है कि क्लाउड में जाना है ताकि हम अपने डिजिटल वर्कफ्लोज को एनेबल कर सकें। डिजिटल वर्कफोर्स को एनेबल करने का मतलब है आपका कॉस्ट इफेक्टिव हो जाना चीजों को। डिजिटल वर्कफोर्स आपका थकता नहीं है, आपके लिए एक्सक्यूजेस नहीं देता। आप उसको जो काम करना है, जब परफॉर्म करना है, जो भी ट्रिगर लगा रहता है उसके बेसिस पे काम करता है। तो अपना डिजिटल वर्कफोर्स को एनेबल करने का पहला स्टेप क्या है कि अपने को क्लाउड में मूव करना पड़ेगा। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करता हूं। सो आज का अपने रोड मैप समझते हैं कि हम लोग
कहाँ से शुरू करें। नॉलेज हमको सब कुछ है, कहाँ से अपने स्टार्ट कर सकते हैं कि अपने टारगेट रखें कि अपने डिजिटल वर्कफोर्स में कैसे पहुंच सके। तो पहले फाउंडेशन स्टेप के बारे में, बेसिक फाउंडेशन स्टेप्स के बारे में अपने बात करेंगे। कोर टूल्स जो जो है, कुछ एक कोर टूल्स जो कि इंस्टीट्यूट के द्वारा अवेलेबल कराई गई है या फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, ठीक है, जिसके लिए आपको एडिशनल कुछ भी पेमेंट नहीं करना है, उसके बारे में कुछ जानेंगे। कुछ वर्कफ्लो ऑटोमेशंस के बारे में समझेंगे, वर्कफ्लो ऑटोमेशंस क्या होता है उसके बारे में थोड़ा समझेंगे। फिर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, चूंकि हम अभी डीपीडीपी एक्ट भी आ गया है, एंड सिक्योरिटी हैज बिकम अ प्राइम security has become a prime in the era of cloud, so we need to understand that as well. And कुछ एक एक्शन प्लान जो आज से लेकर अगर अपने एक महीने तक टारगेट करें तो अपने सीए फॉर्म को डिजिटलाइजेशन के बेस रोड मैप पे या फिर एडॉप्शन ऑफ डिजिटल वर्कफोर्स के लिए कैसे अपने रेडी कर सकते हैं। सो द क्लाउड रेडी सीए फॉर्म विजन, अपना बेस कहां से शुरू होता है। सबसे पहला है पेपरलेस ऑपरेशंस। पहले जब अपने प्रैक्टिस था, पूरा ऑफिस केवल पेपर से भरा रहता था, दिन भर प्रिंटर में कुछ ना कुछ प्रिंट आउट चलता रहता था, और वी यूज टू लव पेपर्स। जब तक पेपर में टिक मार्क नहीं मार दिए तब तक सेटिस्फेक्शन नहीं होता था अपने को। पहला आज का अपना टारगेट क्या हो गया है, मैं प्रेजेंटेशन को थोड़ा सा शॉर्ट कर दूंगा। कारण क्या है कि मैं कुछ एक प्रैक्टिकल डेमो भी आप लोगों को दिखाना चाहता था कि आपका रिपोर्टिंग और डैशबोर्डिंग ये सब कितना ज्यादा एडवांस हो सकता है विद द हेल्प ऑफ क्लाउड टेक्नोलॉजी एंड विद द हेल्प ऑफ न्यू एज टूल्स बेसिकली। सो पेपरलेस ऑपरेशन शुड बी आवर फर्स्ट मोटो, कि ऑफिस में अपने जो ईयरली रिटर्न या फिर बैलेंस शीट जो भी फाइल करते हैं, अलावा उसके एकदम मिनिमम डॉक्यूमेंट पे चले जाए या पूरी पूरी तरह से पेपरलेस ही हो जाए। आज के दिन में आपको पता है कि इंस्टीट्यूट में भी कोई भी एक ऐसा काम नहीं पेंडिंग रहा है जिसमें अपने को पेपर सबमिट करना या फिर पेपर से रिलेटेड कोई भी काम है। आवर ICAI ऑल्सो बिकम फुल्ली पेपरलेस। Now, to become paperless, you need a secure infrastructure. So, when we talk about secure infrastructure, so we need to have some cloud space which is secured in the sense which is we have ensured that it has multi-factor authentication. हर कोई उसमें लॉगिन ना कर सके, उसमें लोग रोल बेस्ड लॉगिन कर सके, हर किसी को हर जगह से हर डेटा अवेलेबल नहीं हो, बिकॉज डेटा इज द मोस्ट वाइटल थिंग पोस्ट दिस डीपीडीपी एक्ट। एंड ऐसे भी आपके क्लाइंट का डेटा या फिर आपके जो पासवर्ड के जो फोल्डर्स हैं, फाइल्स हैं, दैट इज वेरी क्रूशल फाइल्स। सो फॉर गोइंग पेपरलेस यू नीड टू सिक्योर योर इंफ्रास्ट्रक्चर फर्स्ट, and then we need to design some system which is scalable, still cost effective. Now, one of the biggest advantage of being on cloud is you can scale your system without much फिक्स कॉस्ट। लाइक अगर आज मुझे एक क्लाउड में स्टोरेज चाहिए और मुझे एक अगर ऑन प्रेमाइस स्टोरेज चाहिए, तो ऑन प्रेमाइस स्टोरेज के लिए हम देखेंगे कि अभी मुझे 1 TB का हार्ड डिस्क चाहिए, 2 TB का हार्ड डिस्क चाहिए या फिर सर्वर चाहिए, तो कितना TB का सर्वर चाहिए, तो वो एक वन टाइम हार्डवेयर का कॉस्ट है। अगर मुझे हार्डवेयर का कैपेसिटी बढ़ाना है तो कैपेसिटी का भी इनहांसमेंट का आएगा कि वो ब्लॉक में इनहांस करना पड़ेगा मुझे। मुझे अगर कभी भी इनहांस करना है तो वो मल्टीप्लायर इफेक्ट में इनहांस होगा। बट द ब्यूटी ऑफ क्लाउड टेक्नोलॉजीज, अगर आज मुझे स्टोरेज का कैपेसिटी बढ़ाना है या फिर मेरे अगर नंबर ऑफ यूजर्स ज्यादा हो गए, यूजर्स इन द सेंस अगर आपका ऑफिस बड़ा हो रहा है, आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज अगर बढ़ रहे हैं, तो आपको केवल एडिशनल एम्प्लॉयज का केवल कॉस्ट देते जाना है। आपको पूरी तरह से मैंने हार्डवेयर का कॉस्ट को डबल या फिर उसके एडिशनल कॉस्ट में नहीं आना है। तो वी नीड टू डिजाइन अ सिस्टम विच इज पेपरलेस, इट हैज अ सिक्योर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इट इज स्केलेबल सिस्टम ऑल्सो। नाउ व्हाट शुड बी द बेसिक क्लाउड टेक्नोलॉजी स्टैक रफली, जिससे हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं और जो फ्री में अवेलेबल है।
आज के डेट में. सो आई हैव टेकन couple of examples. You may differ, you may prefer something else, but my idea is to give you an overview कि अभी हमारे पास क्या क्या चॉइसेस या ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिसके थ्रू हम लोग क्लाउड में मूव कर सकते हैं. तो पहला, जोहो बुक्स. सो जोहो बुक्स के साथ इंस्टीट्यूट ने एक टाई अप करके रखा है. आईसीएआई जोहो लेवल पे टाई अप है कि जोहो बुक्स का एलाइट प्लान आपको 3 साल के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है. नाउ द कॉस्ट ऑफ दिस एलाइट प्लान इज अराउंड 60,000 रुपीज ईयरली, एंड फॉर 3 years इट इज लाइक अराउंड 1,80,000. तो इसमें आप अपना बुक्स ऑफ अकाउंट खुद का मेंटेन कर सकते हैं और 20 लोगों का पेरोल मेंटेन कर सकते हैं. उसके बाद सेकंड मैंने सिलेक्ट किया है गूगल वर्कस्पेस. नाउ ईदर यू कैन गो फॉर गूगल वर्कस्पेस और यू कैन गो फॉर जोहो वर्कस्पेस. जोहो वर्कस्पेस में भी आपको 5 यूजर का वर्कस्पेस आपको अवेलेबल मिलता है फॉर 5 GB पर यूजर. दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट विच इज अवेलेबल. And the best part of Zoho Workplace or Google Workspace is it gets connected with your Zoho Books or Zoho Analytics stack. Third मैंने लिया है Zoho Analytics. Why I have taken Zoho Analytics? Zoho Analytics is a tool for preparation of MIS, your reports, your dashboards, basically visualization of data. तो फॉर विजुअलाइजेशन ऑफ डेटा की अगर हम लोग बात करें तो हम सभी जानते हैं कि टैबल्यू है और पावर बीआई है जिसको हम लोग यूज करते हैं या फिर कर सकते हैं. बट देन अभी क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन की अगर बात करें तो जोहो एनालिटिक्स हेल्प्स अस अ लॉट. रीजन भी, पावर बीआई या फिर टैबल्यू में जो भी हमें बनाना पड़ता है ना, तो वो हम मेरे को रिपोर्ट वहां पे फिजिकली पहले बनाना पड़ेगा, डिजाइन करना पड़ेगा. Zoho Analytics is now AI enabled सिस्टम. तो आप प्रॉम्प्ट बेस पे भी रिपोर्ट बना सकते हैं. आप केवल एक्सेल चढ़ा सकते हैं और आपका डैशबोर्ड ऑलरेडी बन के रेडी हो जाएगा, एंड देन प्रॉम्प्ट बेस पे आप उसको चेंज कर सकते हैं या फिर बना सकते हैं. Now these are the small steps to set up your Google Workspace. So here Google Workspace or Zoho Workspace or any other workspace, बोलने का मतलब है कि अभी किसी ना किसी वर्कस्पेस का आपको रिक्वायरमेंट है. वाई वर्कस्पेस? वर्कस्पेस कवर्स योर एंटायर ऑफिस सिस्टम. ऑफिस सिस्टम, अगर अब मैं गूगल वर्कस्पेस की बात करूं तो मेरा मेल सारा वर्कस्पेस पे आ जाता है, मेरे जितने यूजर्स हैं वो आ जाते हैं. उसके अलावा जो हम मीटिंग कर रहे हैं, प्रोबेबली अभी जूम में कर रहे हैं, गूगल हैज इट्स ओन सिस्टम. वी कैन डू मीटिंग ऑन गूगल. वी कैन हैव गूगल शीट, वी कैन हैव जेमिनाई का सब्सक्रिप्शन. सो गूगल शीट हो गया, गूगल डॉक हो गया. So this is your typical workspace environment where all the requirement for a user to function is available. Same goes for Zoho Workspace. Price wise, Zoho is little cheaper than Google, and the connectivity is also fantastic. So Zoho में भी ये सारा solution available है. आप Google select करो, आप Zoho select करो, ये सारे application के साथ connect हो जाता है. आप लोगों में से कोई ड्राइव यूज करता है क्या? एनी काइंड ऑफ क्लाउड ड्राइव, और यू आर स्टिल स्टोरिंग योर डेटा इन से लोकल हार्डवेयर? कैन आई गेट अ क्विक रिप्लाई ऑन दिस? हार्ड ड्राइव तो यूज करते हैं मैक्सिमम, अपने पहले तो डाटा उसी में रखते थे. बैकअप के लिए यूज करते हैं या फिर रेगुलर डेटा के लिए यूज करते हैं? रेगुलर डेटा भी यूज होता है, बैकअप भी है. सो गूगल ड्राइव अभी जैसे अपने जो भी यूज करते हैं, तो गूगल ड्राइव का मैक्सिमम अपने क्या करते हैं कि वो 15 GB का जो डेटा का स्टोरेज है वही हम लोगों ने यूज किया. और उसको अगर इंडिविजुअल लेवल पे यूज करते हैं तो उसमें डेटा का बेसिकली यूजर वाइज प्रोटेक्शन नहीं रहता है. सो व्हेन वी गो फॉर एनी काइंड ऑफ ड्राइव विच इज राकेश जी, इस बीच में कुछ पूछना चाहूंगा मैं आपसे. हाँ जी. ये जो अपने गूगल पे बैकअप रखते हैं, तो इसका तो एक्सेस तो कोई भी अथॉरिटीज उसको एक्सेस कर सकता है अपने अलावा, अगर इनकेस एनी
नहीं, जिसके पास आईडी पासवर्ड नहीं होगा वो नहीं कर सकता ना। जिसके पास आईडी पासवर्ड नहीं है वो नहीं कर सकता। मैं समझा नहीं पाया आपको। मान लीजिए कोई मेरे इनकम टैक्स रेड या ऐसा कुछ होता है, हम्म। तो उस समय तो आई बाउंड टू प्रोवाइड एनी, मतलब मेरे पास जो भी होगा मेरे को उनको देना पड़ेगा डिटेल। लेकिन वो अगर मेरा हार्ड ड्राइव में या रहता है तो सेफर साइड में रहेगा। क्यों, आपका तो हार्ड ड्राइव भी लेके चला जाता है वो। तो एक्सेसिबल होता है तब ना। उसके लिए तो बाउंड नहीं है ना मैं देने के लिए। वो नहीं नहीं, दिखा, उसको मिला, तब वो उसको मिलेगा। सेम सेम वे, अगर उसको पता होगा कि आपका गूगल ड्राइव है तो आपको देना होगा, जैसे तो आपको हार्ड ड्राइव लैपटॉप या मिला कंप्यूटर वो चेक करेगा। है वो ना। हैज वैल्यू चेक करे तो उसको पता चल जाएगा वहां पे क्या क्या यहाँ पे ओपन हुआ नहीं हुआ। सेम सेम माने, अगर आप लोकल हार्ड ड्राइव भी यूज कर रहे हैं या फिर गूगल वर्क ड्राइव भी यूज कर रहे हैं या फिर कोई भी वर्क ड्राइव यूज कर रहे हैं, इफ दे हाँ। रिक्वायर दे कैन एक्सेस दैट, राइट। और उसमें अच्छा। आपको मैं वही बताने जा रहा था कि अभी तक अपने जो यूज करते हैं वो पूरा ओपन ड्राइव यूज करते हैं। ओपन ड्राइव मतलब सेम ड्राइव में ही सारा फाइल है, सारा फोल्डर है, सारे लोगों को ही वो एक्सेस है, ठीक है ना। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है, अगर अपने जो ऑनलाइन ड्राइव्स इशू करते हैं या फिर लोगों को देते हैं एक्सेस, तो सबसे पहला रोल बनाना जरूरी है कि किस रोल को कितना एक्सेस मिले, कौन क्या देख सकता है, कौन क्या केवल व्यूइंग एक्शन है किसके पास एडिटिंग का ऑप्शन है, किसके पास डाउनलोड का ऑप्शन है, कौन फाइल शेयर कर सकता है। और ये सारे चीजों का ना लॉग क्रिएट होता है, एक्सेस कंट्रोल। इसमें जैसे है ना अपना कि क्लाइंट फोल्डर हो गया, शेयर ड्राइव्स हो गया, तो शेयर ड्राइव्स इज लाइक कॉमन, अपने इंटरनल पॉलिसीज वगैरह जो है, फाइल मेंटेनेंस और ये सब का, ये अपने रिसोर्सेज को दे दिया, और जिसको जितना एक्सेस है उसको उतना दिखेगा, सीधा सीधा बात है। और जिसको जितना एक्सेस है देखने का, से सपोज मेरा कोई एक असाइनमेंट आया, अब असाइनमेंट मेरे को टीम ए करके देने वाला है, तो टीम ए को मैंने उस फोल्डर का एक्सेस दिया, टीम ए ने काम खत्म किया, टीम बी को फिर एक्सेस दिया, टीम बी ने रिव्यू किया, और फिर हो जाने के बाद मैंने दोनों से एक्सेस हटा दिया, तो फिर फाइल का एक्सेस चला गया उन दोनों के पास से। सो एक्सेस कंट्रोल होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक हो गया एक्सेस कंट्रोल, और एक हो गया आपका डॉक्यूमेंट का जो नाम सेव करते हैं। तो आजकल क्या है कि सारा ही स्मार्ट ड्राइव हो गया है, आपका फाइल फोल्डर सर्च कर कर निकाल देता है। तो अगर आप नाम को अगर ढंग से सेव करेंगे, तो फाइल को रिट्रीव करने में या फिर ड्राइव से लेकर आने में ये अपने को काफी हेल्प करता है। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनी क्लाउड अकाउंटिंग सिस्टम। हियर आई हैव टेकन अ एग्जांपल ऑफ जोहो बुक्स। सो आप मोटा मोटा एक 4 सप्ताह का एक प्लान बना लीजिए। प्लान क्या बनाना है, इनिशियल सेटअप। अगर हम लोग कोई भी, जैसे हम लोगों ने अभी गूगल वर्क ड्राइव का बात किया, ठीक है, तो मुझे बेसिक्स जानना होगा, बेसिक सेटअप करना जरूरी है। बेसिक सेटअप हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने रोल बनाया, हम लोगों ने सबको एक्सेस दिया, हम लोगों ने फाइल का स्ट्रक्चर बनाया, फोल्डर का स्ट्रक्चर बनाया, नेम का स्ट्रक्चर बनाया, एंड देन वी हैव स्टार्टेड यूजिंग इट। सेम वे द मिस्टेक दैट वी डू, कि हम अगर बुक्स यूज किए और सीधा पहले दिन से ही एंट्री मारना शुरू कर दिए, उससे क्या होता है कि डेटा का स्ट्रक्चर ठीक से नहीं आता है, चार्ट ऑफ अकाउंट ठीक से नहीं बनता है, प्रॉपर लेजर्स क्रिएट नहीं होते हैं, रादर चार्ट ऑफ अकाउंट्स क्रिएट नहीं होते हैं, बाद में उसको कैटेगरी करने में या फिर रिपोर्ट जनरेट करने में इसमें काफी सारे इश्यूज आते हैं। तो अपना क्या काम है कि पहले अपने को ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपरली with chart of account, GST setting, tax preference. First, we need to set it up properly. Second work is import your data if you want to bring your historical data. या फिर केवल ओपनिंग बैलेंस लीजिए, और उसको हिस्टोरिकल ट्रांजेक्शन अगर नहीं लाना है तो केवल ओपनिंग बैलेंस लीजिए और फिर वहां से शुरू कर दीजिए। इट इज ऑलवेज प्रेफर्ड और एडवाइजेबल कि अगर आपको किसी भी फिनेंशियल ईयर से स्टार्ट करना है, तो एटलीस्ट उस फिनेंशियल ईयर का पूरा डेटा एक सिस्टम में लेकर आ जाइए, ताकि आपको बाद में रिपोर्टिंग में परेशानी नहीं हो। थर्ड स्टेप इज वर्कफ्लो डिजाइन। नाउ व्हाट इज वर्कफ्लो डिजाइन, अगर मुझे वहां पे ऑटोमेशंस लगाना है, तो द वेरी पर्पस ऑफ गोइंग टू अ क्लाउड इज टू हैव ऑटोमेशंस, राइट। वर्कफ्लो ऑटोमेशन, अप्रूवल ऑटोमेशन, रोल बेस्ड एक्सेस। सो ये जितने सारे चीजें हैं वो फिर हमें डिजाइन करनी पड़ते हैं, कि अगर हम इनवॉइसिंग कर रहे हैं तो कौन अप्रूव करेगा, अगर हम पेमेंट दे रहे हैं तो कौन अप्रूव करेगा, अगर इनवॉइस का पेमेंट डिले आ रहा है तो पेमेंट का रिमाइंडर कैसे जाना चाहिए,
अगर अपना कोई रेकरिंग ट्रांजेक्शन्स है तो वो हम कैसे टेम्पलेट में सेट कर दें कि बार बार एक ही ट्रांजेक्शन को एंट्री नहीं करना पड़े. सो दीज आर द थिंग दैट वी कॉल वर्कफ्लो डिजाइन. सो फर्स्ट वी नीड टू इनिशिएट द सेटअप, data import, and then the workflow design, and then training. Training is utmost necessary. Otherwise टीम या फिर आप उसको पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे. प्रोबेबली हम एंट्री मार ले रहे हैं लेकिन उसके जो एडवांस फीचर्स हैं या फिर और भी जो यूटिलाइज कर सकते थे वो यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे. कोर जोहो बुक्स फीचर फॉर सीए फॉर्म. So I'll just go through the features. Probably इसके बारे में ज़्यादा अपने डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि मैं टाइम भी देख रहा हूँ पैरेलली. तो जैसा कि मैंने बताया एक दो मुझे प्रैक्टिकल आपको एग्जांपल्स भी दिखाना है. So financial management के लिए automated GST calculation and filing is available. Multi-currency support if you are billing to your overseas client, or probably you're working in different country, you can have multi-currency accounting. Bank reconciliation is there, auto bank reconciliation rather. Then it has a fixed asset register, purchase order management. फॉर क्लाइंट इंटरेक्शन क्लाइंट पोर्टल इज अवेलेबल. आप क्लाइंट को क्लाइंट का पोर्टल दे सकते हैं जो आपको रिकंसिलिएशन वगैरह ऑटो करके दे सकता है. यार अदर आप क्या अपने बुक्स में बुक करके रखे हैं वो सामने वाले को दिखा सकते हैं. क्लाइंट के अलावा इसमें वेंडर का भी पोर्टल है. आप अगर किसी से सर्विस ले रहे हैं या फिर कुछ भी परचेज कर रहे हैं तो आप वेंडर पोर्टल दे सकते हैं. एंड रिपोर्टिंग एंड कंप्लाइंसेस के लिए, रिपोर्टिंग के लिए मैं एक बात बोलूंगा कि जैसे 70-80 रेडी टू यूज रिपोर्ट्स हैं अवेलेबल, बट इसमें कस्टम रिपोर्ट बिल्डर्स भी है और इसमें एडवांस एनालिटिक्स भी है. तो अगर आपको लगता है कि कोई एक रिपोर्ट ऐसा है जिसमें आपका काम नहीं हो रहा है तो आप एनालिटिक्स में विजुअलाइजेशन में रिपोर्ट अलग अलग बना सकते हैं. नाउ आई हैव नेम्ड वन मोर टूल कॉल्ड जोहो एनालिटिक्स. सो अभी अपने को पता है कि जब अपने क्लाइंट से बात करते हैं या फिर क्लाउड पे डेटा लेकर जाते हैं तो डेटा एनालिटिक्स हैज बिकम अ वेरी एसेंशियल फॉर एनी एनी लेवल ऑफ प्रैक्टिस. केवल रिपोर्ट्स को एक टेबल के फॉर्मेट में डाल देना और एक विजुअलाइज डैशबोर्ड दिखाना में काफी फर्क पड़ जाता है. वो हमारा एक क्रेडिबिलिटी का भी मतलब एक इशू आता है, क्लाइंट के सामने इंप्रेशन का भी इशू आता है, और समझने के तौर पे भी अगर हम किसी भी डेटा को एक टेबल फॉर्मेट में समझाते हैं या फिर किसी भी डेटा को इंटरेक्टिव चार्ट और इंटरेक्टिव डैशबोर्ड के रूप में समझाते हैं तो it is much more easier to present the report. Building analytics dashboard, I will show you practically how you can prepare these dashboards on almost like an immediate basis. So I have spoken about security framework also. जैसा हम जानते हैं कि क्लाउड में जाने के बहुत सारे फायदे हैं, और क्लाउड को लेकिन अगर ढंग से मेंटेन नहीं किया गया या फिर प्रॉपर अगर आपके पास सर्टिफिकेट्स नहीं है या फिर जो भी आप साइट यूज कर रहे हैं वो सिक्योर्ड साइट नहीं है या फिर जो भी आप चैनल कर रहे हैं सिक्योर्ड साइट या चैनल नहीं है तो डेटा लीकेज होने के भी काफी चांसेस हैं. या फिर ऐसा भी है कि अगर आपके पास एक्सेस कंट्रोल डेटा नहीं है, एक्सेस कंट्रोल मतलब रोल बेस्ड अगर आपने परमिशन नहीं देकर रखा है अपने एम्प्लॉय को या फिर किसी भी से प्रोबेबली अपने क्लाइंट को ही एक्सेस देकर रखा है और एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सेस नहीं है तो उनके पास सारा डेटा का एक्सेस जा सकता है, डेटा आपका मिसयूज हो सकता है. तो आपको सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को पहले अच्छे से डिजाइन करके सिक्योरिटी को रोल बेस्ड एक्सेस बेस्ड लगाना बहुत जरूरी है. कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है कौन डेटा देख सकता है, कौन डेटा एडिट कर सकता है और कौन डेटा डाउनलोड एंड शेयर कर सकता है. तो ये सारी पैरामीटर्स को लगाना काफी इंपॉर्टेंट है. एंड एक और जरूरी एस्पेक्ट है कि आप इसको रेगुलर मॉनिटर करें. इसमें अच्छे से लॉग्स बन जाता है कि कौन आपका डेटा मॉनिटर कौन आपका डेटा एडिट किया है, किसने आपके डेटा को डाउनलोड किया है, किसने डेटा ट्रांसफर किया है. आप उसको कंटिन्यूस मॉनिटर में रखें. डेटा बैकअप का एक अपना स्ट्रैटेजी होना चाहिए.
डेटा बैकअप आप अगर इन प्राइम डेटा रखते हैं या फिर लोकल सर्वर में अगर आप डेटा रखते हैं, तो डिजास्टर रिकवरी के लिए इट इज ऑलवेज सजेस्टेड कि आप क्लाउड लोकेशन में डेटा शेयर करके रखें। अगर क्लाउड में भी रखे हुए डेटा, तो पीरियोडिकली आप डेटा को डाउनलोड करें। वर्जन कंट्रोल, आप मिनिमम 30 दिन का वर्जन हिस्ट्री रखें, ताकि अगर कोई कोई आपका डॉक्यूमेंट को अगर डिलीट भी कर देता है आपके सर्वर पे जाके या फिर आपके क्लाउड पे जाके, अगर कोई डॉक्यूमेंट को अगर डिलीट भी कर देता है पर्पसली विथ मैल इंटेंशन, अगर आपका कोई डेटा डिलीट भी कर देता है, तो भी उस डेटा को आप रिकवर कर सकते हैं। ऑफलाइन आर्काइव का जैसे मैंने बताया कि अगर ऑनलाइन में डेटा तो है, लेकिन अगर अपने को किसी भी तरह का कंप्लायंस का रिक्वायरमेंट है या फिर कुछ है, तो अगर आप ऑफलाइन रखे हुए तो उसका ऑनलाइन बैकअप रखिए, ऑनलाइन रखे हुए तो उसका ऑफलाइन बैकअप रखिए। एंड रिकवरी टेस्टिंग, तो जैसा कि अपने फायर ड्रिल करते हैं, किसी भी अगर अपने कोई भी कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, फायर फाइटिंग सिस्टम लगा हुआ है, तो रेगुलर बेसिस पे फायर ड्रिल्स होता रहता है। वैसे ही अपने को ऑफिस में एक रिकवरी ड्रिल या फिर क्वार्टरली रिकवरी टेस्टिंग, ताकि जरूरत पड़ने पे आपके सारे जो एम्प्लॉय हैं, स्टाफ है या फिर टीममेट्स हैं, वो अवेयर रहें कि इस चीज को अपने कैसे कर सकते हैं रिकवरी। सो यहां तक अपने को कोई क्वेश्चन है क्या? फिर एक जस्ट इम्प्लीमेंटेशन प्लान में जाता हूं। डज एनीवन हैज एनी क्वेश्चन? Sorry, I cannot see you all, so just can I quickly get a yes, no, if anyone is having any question, or am I okay till now? Okay. So 90 days implementation रोड मैप अगर अपने देखे, तो पहला मंथ इज फाउंडेशन, एज वी डिस्कस that we set up a say Google Workspace or Zoho Workspace, migrate non-domain email from non-domain to domain based email। domain based email हो गया अपना, जैसे अगर नॉर्मल अपने जीमेल यूज कर रहे हैं या फिर नॉर्मल राकेश सिंह एंड कंपनी का मेल यूज कर रहे हैं, तो उससे क्लाइंट के ऊपर काफी इम्पैक्ट पड़ता है और एक आपका क्रेडिबिलिटी पे भी काफी इम्पैक्ट पड़ता है। एंड यू गेट अ सिक्योर्ड environment also for giving access to your team। Then you have the core system where you can implement your books of account, import old data, configure workflow, and integrate with existing process। So the first process would be to प्रिपेयर अ प्रोसेस डॉक्यूमेंट। आप पहले प्रोसेस डॉक्यूमेंट बनाइए, डॉक्यूमेंट बनाने के बाद उसको पहले एक बार रिव्यू करिए, एंड देन यू स्टार्ट इनटू सिस्टम डेवलपमेंट और सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन। अगर बिना प्रोसेस डॉक्यूमेंट बनाए अगर आप सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन में जाते हैं, तो उसका सबसे बड़ा खामियाजा ये होता है कि आप कुछ दूर तक हो सकता है प्रोबेबली आपने इम्प्लीमेंट कर दिया, आपने कोई एक सिस्टम को बिना टेस्टिंग किए इम्प्लीमेंट कर दिया, या फिर उसका कोई प्रॉपर प्रोसेस डॉक्यूमेंट नहीं है, एंड देन यू विल रियलाइज कि ओके probably I have to redo everything or I have to change everything, right? So it is always advisable कि you prepare a process document first and then go for system implementation। Now there are advanced tools. Once you set up your foundation, you set up your core system, then
you are ready to like implement your advanced tools. So Zoho Analytics is one of the advanced tool where you can build, customize, and view reports, automate reporting, and आप ये रिपोर्ट, लिंक बेस्ड रिपोर्ट, अपने क्लाइंट से अपने टीम में शेयर भी कर सकते हैं. Now, let us discuss on common implementation challenges that we face while doing the implementation part, right? So, the common implementation challenges, the first thing first is the team resistance. अब हम लोग एक सिस्टम चला रहे हैं, से टैली सिस्टम में काम कर रहे हैं. अगर आप अपने ऑफिस में कर रहे हैं, अपने क्लाइंट के ऑफिस में कर रहे हैं, कहीं भी एक सिस्टम जो एक लेगेसी सिस्टम जिसको हम लोग बोलते हैं, लेगेसी सिस्टम से एडवांस सिस्टम में जाना, मतलब सबसे पहला रेजिस्टेंस प्रोबेबली टीम का आएगा. टीम का इसलिए आएगा क्योंकि टीम सीखना नहीं चाहती है. टीम को लगता है कि इससे काम बढ़ जाएगा. हम लोग एक यूजर इंटरफेस के आदी हो जाते हैं. जो सिस्टम हम लोग यूज कर रहे हैं उस वो उसका स्क्रीन हम जानते हैं, कहाँ से क्या होगा जानते हैं, कीबोर्ड शॉर्टकट्स जानते हैं. तो वो हमारे लिए एक कंफर्ट जोन बन जाता है. उस कंफर्ट से हम निकलना नहीं चाहते हैं, इसलिए नया कुछ सीखना नहीं चाहते. तो सबसे पहला चैलेंज हमें हमारे टीम के तरफ से ही आता है. या फिर अगर अपने आप कोई भी क्लाइंट के इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो क्लाइंट की टीम के तरफ से आपको चैलेंजेस आते हैं. फिर है डेटा माइग्रेशन कॉम्प्लेक्सिटी. सो अलग अलग एप्लीकेशन का डेटा स्ट्रक्चर अलग अलग रहता है. से फॉर एग्जांपल अगर हम लोग जोहो बुक्स में माइग्रेट कर रहे हैं टैली से, सो टैली में जो डेटा स्ट्रक्चर है या फिर जिस लेवल पे डेटा आपको एक्सेल में निकलेगा, प्रोबेबली ये सेम स्ट्रक्चर में डेटा आपका जोहो बुक्स में माइग्रेट नहीं होगा. तो प्रोबेबली आपको डेटा को पहले एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा. आपको किस स्ट्रक्चर में डेटा चाहिए उसको पहले समझना पड़ेगा. एक्सट्रैक्टेड डेटा को आपको उस जिस सिस्टम में डालना है उसके हिसाब से उसको ढालना पड़ेगा, उसको चेंज करना पड़ेगा, एंड देन प्रोबेबली you will be able to migrate the data. So this is a little complex process, but then अगर properly सोच के या फिर जैसा कि मैंने बताया आपको, अगर proper documentation ready करके किया जाए तो it goes well. Then next is client's concern. So definitely if we talk about going on cloud, right? So first thing first, which question comes from the client side is how secure is my data? So before we doing this migration or preparation of this document, we need to keep the client informed also. We need to tell them how the world is changing. We need to address the client's concern as well कि हम लोग कैसे क्या करने जा रहे हैं, इसका फायदा क्या है, इसमें जो जो शॉर्टकमिंग्स हैं उसका हम लोगों ने क्या क्या प्रिकॉशन लेके रखा है, एंड हाउ हेल्पफुल इट वुड बी वंस द data is migrated or probably the system is migrated into a new system. Then the next challenge is integration issue. So here we were talking about integrating Google Workspace with Zoho Books and Zoho Books with Zoho Analytics. So when we do such kind of integration, sometimes what happens, there is a ready connection available. Okay, you just need to click on 2-3 buttons and the connection get established. बट देन समटाइम्स व्हाट हैपन, अगर दो सिस्टम एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, नेटिव इंटीग्रेशन नहीं है. नेटिव इंटीग्रेशन मतलब कंपनी ने खुद ही इंटीग्रेशन बना के रखा है, आपको बस यूजर आईडी पासवर्ड या प्रोबेबली कुछ एक बटन क्लिक करने हैं, आपका सिस्टम कनेक्ट हो जाएगा. अगर नहीं है और अगर दोनों सिस्टम में एपीआई है तो प्रोबेबली आपको डेवलपर्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, एपीआई कनेक्ट करना पड़ेगा, एपीआई समझना पड़ेगा, या फिर कोई ना कोई मिडलवेयर यूज करना पड़ेगा जो कि इस तरह का सर्विस देता है. तो Zapier इज वन कंपनी विच हैज ऑल द एपीआईज एंड वो कुछ पेमेंट लेते हैं और दो सिस्टम को आपस में कनेक्ट कर देते हैं. तो यू कैन यूज द सिस्टम और जितना भी एपीआई कॉल्स रहता है उसके बेसिस पे दे चार्ज. बट देन द गुड थिंग इज कि अगर आप एक कनेक्टेड सिस्टम यूज करते हो तो आपका डेटा डुप्लीकेसी या फिर वर्क डुप्लीकेसी काफी हद तक खत्म हो जाता है. सो
considering all this fact, let us understand what should be the next step. If you really want to, migrate, and if you really want to make your knowledge implement or turn into a system, so ideally a 4-month plan should be there, or rather a proper plan, monthly plan should be there कि हम लोग कब क्या करने वाले हैं. Before we start on implementation, we need to evaluate, and for evaluation we need to prepare the documentation. So document preparation should be the step one. So we need to evaluate the current infrastructure. क्या हमारे पास अपग्रेडेड सिस्टम है, क्या हमारे पास क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारा कितना पैसा खर्चा होने वाला है, कितना पैसा सेव होने वाला है. और एक बात मैं आपको बताता हूँ कि जो भी आपका खर्च होगा, ऐसा नहीं है कि आपको, अगर ये एक्सपेक्टेशन है कि पहले महीने से ही रिकवरी हो जाएगा. So this is the kind of investment that you're doing in the technology, right? And when you do a certain investment, it requires time to give you an ROI. So you can always expect ROI, but the horizon should be minimum 4 to 6 months to understand the ROI. Reason being the adaptability of the team, the adaptability of the system, and by the time everyone is used to of the new system, then the efficiency get enhanced. Probably your report will get enhanced. You will get a better feedback from the system, or you can do a better number crunching. So that should be at least a 4 to 6 month horizon. अगर आप प्लान ही एक महीने का लेके चल रहे हैं कि एक महीने में ही मेरा सब कुछ हो जाना चाहिए, तो प्रैक्टिकली ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है कि पूरे टीम को ट्रेन कर कर एक सिस्टम को पूरी तरह से माइग्रेट करके और एक लेवल पे लेके आना. इट 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 नीड्स टाइम. So here I'll just complete my presentation, and if time permits, probably I can showcase a little a small example, or otherwise I'm open to questions. It's okay, Rakesh ji. If you need more time, you can take. Hmm, 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 hmm. So, Chimpuji, I'll show a little example, a very, very small example. Just I'm stopping the screen sharing. Let me take out one file and I'll give you an example. বলিউডে এসছো কতক্ষণ আগে এখান থেকে মানে যদি খুব সকাল সকাল বেরোতে পারি তাহলে পরে 3.5 ঘন্টা
राकेश जी, there is any issue? नहीं सर, वो शेयरिंग में चैलेंज आ रहा था, बस हो गया शेयर। मैंने शेयर किया है स्क्रीन, दिखेगा तो बताइएगा। आ गया राकेश जी। हाँ जी, हाँ जी। तो ये एक सैंपल डेटा है, सेल्स ट्रांजैक्शन का ये सैंपल एक डेटा है, विच इज लाइक इनवॉइस का डेट, इनवॉइस का नंबर। इज इट विजिबल चिंकू जी? हेलो, इज इट विजिबल? Yes, हाँ yes, राकेश yes. जी, आ रहा है, यस। Yeah, it's visible. हाँ हाँ। तो जस्ट एक सेल्स का डेटा, मैंने सैंपल डेटा एक्सट्रैक्ट किया है। इनवॉइस डेट, इनवॉइस नंबर एंड कस्टमर नेम, रीजन, किस रीजन से है ना, सेल्स का चैनल क्या है, बी टू बी है, ऑफलाइन है, डीलर है, सेल्स पर्सन कौन सा है, उसका प्रोडक्ट क्या है, और पेमेंट मेड किस मोड पे हुआ है, क्रेडिट कार्ड, कैश, यूपीआई, बैंक ट्रांसफर, एंड इनवॉइस का अमाउंट क्या है। तो से फॉर एग्जांपल ये हमारा एक सेल्स का डेटा है, अगर इसके ऊपर मुझे कुछ अगर रिपोर्ट बनाना है, तभी इसके ऊपर रिपोर्ट बनाना है तो मुझे पहले तो रिपोर्ट के पैरामीटर डिसाइड करने पड़ेंगे कि रिपोर्ट मुझे कैसा चाहिए, कैसा दिखना चाहिए, क्या क्या उसमें केपीआईज होने चाहिए। उसके बाद मुझे पहले रिपोर्ट बनाने के बाद चार्ट्स बनाने पड़ेंगे, उसके बाद डैशबोर्ड बनाना पड़ेगा। तो दिस इज द आइडियल प्रोसेस टू मेक वन रिपोर्ट इन से एक्सेल और एनी अदर टूल। बट जैसा कि मैंने आपको बता रहा था कि अभी बहुत सारा यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, ठीक है ना, जिसमें आप क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म आ गए हैं, जिसमें केवल आप डेटा अपलोड करने से ही आपको मल्टीपल रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड्स बन के मिल जाएगा। से फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे जोहो एनालिटिक्स को खोला है, जस्ट सिंपल analytics.zoho.in में जाकर एक यूजर आईडी बनाकर लॉगिन किया है, ठीक है। नाउ आई हैव अ बटन हियर, इंपोर्ट योर डेटा, समथिंग कॉल इंपोर्ट योर डेटा। I'm selecting one organization, sample organization, and it say import your data. मैं ये import डेटा पे आता हूँ। अब मेरा डेटा किस में है? मेरा डेटा एक्सेल में है। इट कैन गेट कनेक्टेड विथ एनी ऑफ द सिस्टम। आप एसएपी यूज करते हो, आप ओरेकल यूज करते हो, आप ज़ो बुक्स यूज करते हो, तो किसी में भी डेटा से, ये डेटाबेस से आपका ऑफलाइन कोई डेटाबेस है, आपका ऑनलाइन कोई डेटाबेस है, आपका कनेक्ट हो जाता है। तो मैं अभी एक्सेल सेलेक्ट करता हूँ कि मुझे एक एक्सेल चढ़ाना है। तो मुझे पूछा कि ये एक्सेल का वर्कस्पेस का नाम क्या देना है। मैं जैसे ऐसे ही बोला सैंपल रिपोर्ट, एंड लोकल ड्राइव से मुझे एक ये सीएसवी टीएसवी फाइल इंपोर्ट करना है। तो मैंने लोकल ड्राइव से, एंड दिस इज माय, मैंने इसको क्लोज किया। इस फाइल को मैं एक सीएसवी फॉर्मेट में एक बार सेव करता हूँ, या फिर मैं इसको एक्सेल ही सिलेक्ट कर लेता हूँ कि मैं एक्सेल डेटा अपलोड कर रहा हूँ। अभी मैंने फाइल को सिलेक्ट किया। तो मैंने ये सेल्स का डमी डेटा सिलेक्ट कर लिया। दिस फाइल इज इन यूज, लेट मी जस्ट क्लोज दिस फाइल क्विकली। तब ये मेरा फाइल सिलेक्ट हो गया। नेक्स्ट स्टेप इज
next, or try sample. So if I try the sample, it will show me the data quality. अगर मैं ये सेल्स का, इसमें दो फोल्डर है, तो इसमें मैं सेल्स डेटा को ट्राई किया, मैं इसको सिलेक्ट किया, सैंपल डेटा आ गया, एक मिनट। मैंने इसको नेक्स्ट किया, तो वो जो मेरा डेटा था, डेटा का फोल्डर फाइल में दिखा दिया कि कौन सा है। ये मैंने सेल्स ट्रांजेक्शन को सिलेक्ट किया और इसमें दिखा रहा है इनवॉइस डेट, इनवॉइस नंबर, कस्टमर करके, ये सारा डेटा जैसा था वैसा मेरे पास आ गया। मैं फिर से नेक्स्ट करता हूँ, ये ऑटो आइडेंटिफाई कर लिया कि ये डेट का कॉलम है, ये इनवॉइस पॉजिटिव नंबर का कॉलम है, ये कस्टमर नेम इज अ प्लेन टेक्स्ट, रीजन इज अगेन अ प्लेन टेक्स्ट, सेल्स चैनल इज दिस, प्रोडक्ट इज अ प्लेन टेक्स्ट, सेल्स पर्सन इज प्लेन टेक्स्ट। तो ये सारा डेटा ऑटो आइडेंटिफाई कर लिया। अब इनवॉइस अमाउंट इज शोइंग प्लेन टेक्स्ट, मैं इसको चेंज कर से नंबर्स कर दिया, या फिर करेंसी पे चेंज कर दिया इसको। इनवॉइस अमाउंट इज करेंसी एंड रीजन इज, से मैंने एक बार के लिए रीजन को प्लेन टेक्स्ट में ही रखा, एंड देन आई प्रेस क्रिएट। डेटा इंपोर्ट हो गया, कुछ इंपोर्ट विथ वार्निंग है, ठीक है, अभी अपने को सैंपल के लिए ठीक है, मैंने इसको क्लोज किया। So the system is working now, and It is ये working. एक एक्सेल के फॉर्मेट में वो सारा डेटा एक मुझे इंपोर्ट करके दे दिया। अब इसमें पूछ रहे हैं कि क्या आप इसमें ऑटो रिपोर्ट जनरेट करना चाहेंगे डेटा को एनालाइज करके, मैंने यस कर दिया। तो इट हैज आइडेंटिफाइड एंड क्रिएटेड अ डैशबोर्ड फॉर मी। नाउ व्हाट इज दैट डैशबोर्ड? इट विल गिव यू अ प्रीव्यू। So if I go to the dashboard, just a minute. Rakesh ji, we think we close shortly. हाँ ठीक है, वी कैन। सो जो डैशबोर्ड उसने बना के दिया, मैं बस केवल वो दिखा देता हूँ, वी कैन क्लोज इट। सो अब इस डैशबोर्ड पे और भी काम किया जा सकता है, बट देन मेरा बोलने का मतलब है कि आपको इस तरह का रेडी टू use dashboard just by importing the data, or probably just by giving prompts, it can create, right? नाउ अब उसमें आपको कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ बेसिक्स चेंज करना है, अपने उसमें कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, ओवर टू यू चिंपली। हेलो।
Am I audible? Shimpuji, over to you. See, you are audible. Yes, yes, yes. Over to you. Thank you, Rakesh ji. We now close the session. Yes, yes, we can. Thank you, Rakesh ji. Your knowledge about the cloud accounting or cloud data, it is too fruitful to us, and it is best helpful those people who are traveling frequently or using data here and there. And it is also a little cost addition, more benefits. So, Rakesh ji, thank you for today's session. Thank you, And sir. Thank you for providing me the opportunity. ग्रेटफुल आपने समय दिया और आज का सेशन लिया. Thank you, sir. Thank you. EIRC now close the Thank session. you to all the participants. Thank you, EIRC. Thanks to the chairman. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Mr. Singh. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you.